اللہ پاک سے بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ انسان غم میں ہی کیوں اپنے خدا کو یاد کرتا ہے؟ خوشی میں وہ شدت کیوں پیدا نہیں ہوتی جو غم میں ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے نبی میرے بندے، اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ اللہ انسان سے بہت قریب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انسان دل سے خدا کو پکارتا ہے، اس سے دعا مانگتا ہے یا اس سے معافی طلب کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کی بات سنتا ہے۔ آج کل ہماری دعائیں رٹے رٹائے لفظوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دل سے دعا مانگنے کے لیے الفاظ کا سمجھنا اور انہیں دل کی آواز بنانا بہت ضروری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بہت بامعنی، حکمت اور محبت سے بری ہوئی ہیں۔ ان کے الفاظ بھی بہت خوبصورت ہیں۔ ان کی دعائیں پڑھ کر دعا مانگنے کا طریقہ سیکھا جا سکتا ہے۔ دعا مانگنے کے لیے پہلے اللہ کی تعریف بیان کی جائے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے جائیں، پھر اپنے دل کی بات بہت وجہ، دھیان، دردمندی اور عاجزی کے ساتھ بیان کیجیے۔ دعا خدا سے بات چیت کے انداز میں کیجیے۔ توجہ اور دل کی گہرائی سے مانگی جانے والی دعاؤں کا جواب اکثر اہل دل کو فوراً مل جاتا ہے۔ بچوں کے دل بہت پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ 7 سال کی عمر سے ان کو بھی دعائیں مانگنا سکھائیے۔ اس عادت سے بچوں کا اپنے پروردگار کے ساتھ ایسا روحانی تعلق پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ خدا سے بات چیت کرنے لگتے ہیں۔ یہ تجربہ ان کا زندگی بھر کا اثاثہ ہوتا ہے۔ اللہ سے تعلق کی بنیاد بچپن سے ہی پڑ جاتی ہے، پھر کوئی ان کو جتنا بھی بھٹکائے، خدا سے یہ تعلق ان کو خدا سے جوڑے رکھتا ہے۔ جب رات کو سونے کے لیے جائیں تو لیٹتے وقت جب چادر اوڑھ لیں تو اللہ سے دن بھر کی کارگزاری شیئر کر دیں۔ نہ دعا کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، نہ وضو کی، بس باتیں کریں جیسے فون پر کی جاتی ہیں، یا کسی دوست سے سب کچھ کہہ دیں، کچھ نہ رکھیں دل میں۔ میرے رب، میرے وہ فلاں فلاں کام کرنے والے رہتے ہیں، فلاں فلاں نیکیوں کا ارادہ ہے وہ پوری نہیں ہوتی، فلاں فلاں گناہ تو جان ہی نہیں چھوڑتے، تو ہی کچھ بندوبست کر ورنہ میں تو مفت میں مارا جاؤں گا۔ ذا ذوالجلال والاکرام، تو بس مجھ سے بچا لے، اچھا خاصا تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میرے رب، آج کوئی نئی دعا سکھا دینا، مجھے آتا کچھ نہیں، تجھے پکی والی دوستی کا وعدہ، میرا خیال رکھنا، تیرے سوا میری سنتا کون ہے؟ کسی سے بھی باتیں کرنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، کنیکشن یعنی تعلق یا جان پہچان۔ آپ کسی کو موبائل پر کال کریں مگر کال کنیکٹ ہی نہ ہو تو باتیں کیسے کریں گے؟ تو کنیکشن تو سب سے پہلے قائم ہونا چاہیے۔ اب اگر سامنے والا آپ کو جانتا ہی نہیں تو آپ کی سنے گا کیوں؟ آپ راہ چلتے کسی کو روک کر اپنی کہانی شروع کر دیں تو وہ آدمی آپ کو یہی کہے گا نہ کہ بھائی پگلا گئے ہو کیا، مجھے کیوں سناتے ہو، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ خواہ مخواہ وقت برباد کرنے آ جاتے ہیں۔ میرے پاس اپنے ڈھیروں کام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کنیکشن قائم کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، میں نے انسانوں اور جنوں کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ آپ جملے کی شان دیکھیں، بے شک یہ الفاظ کوئی انسان کہہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہماری ہر سوچ، ارادے اور دلیل کی نفی پہلے ہی کر دی، بنانے کا مقصد بعد میں بتایا۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی عبادت کا بھی کہیں، اپنے سے دعا کرنے کا بھی کہیں، رجوع کرنے کا بھی کہے اور پھر اسے ہمارے لیے مشکل بھی بنا دے؟ اللہ سے تعلق قائم کرنا قدرتی عمل ہے۔ دوسری ضروری شے پہچان ہے۔ پہچان ملتی ہے یاد سے، ذکر سے۔ اللہ کے بارے میں جانیں، قرآن پاک پڑھیں، حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرفوعات پڑھیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے نقش قدم پر چلیں تو ہلکے مالک کی عظمت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ محبت کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، محبوب کا اچھا لگنا اور اس کے ملنے کی امید۔ اب کوئی اچھا ہی نہ لگے تو محبت کیوں کرو؟
अगर मिलने की उम्मीद ना हो तो इंसान मायूस होकर कोशिश छोड़ देता है। अल्लाह का जिक्र ये नसीहत और उम्मीद दोनों देता है। आपने अक्सर सुना होगा कि जो बंदा अल्लाह से दूर हो गया है वो कहीं का नहीं रहा, जिसे अल्लाह मिल जाए वो भी कहीं का नहीं रहता। दुनिया की हर शय बेमज़ा, हर दीदार बेमानी हो जाता है। कुदरत झंझोड़ कर रख देती है। ऐसी मुसीबतें नाज़िल होती हैं कि बंदा हिल कर रह जाता है। तब जी अल्लाह से बातें करने वाली आदत काम आती है। मैंने एक रोज़ अपने दोस्त अब्दुल्ला से पूछा कि यार बड़ा मुश्किल लगता है अल्लाह तक पहुँचना। तो कहने लगा, अबद और अल्लाह में सिर्फ एक पेश का ही तो फासला है। दुआ एक अजीमुल शान इबादत है। एक हदीस में आया है कि दुआ मुसलमानों का हथियार, दीन का स्तून और आसमानों ज़मीन का नूर है। इसी तरह एक और हदीस में है कि दुआ बिला को टाल देती है। यानी दुआ ही मोमन का एक ऐसा हथियार है कि जब चारों ओर से उससे नाउमीदी और मायूसी घेर ले और उम्मीद की कोई किरण नज़र ना आती हो, तो ऐसे में दुआ ही एक मोमन का अजीम सहारा और हथियार का काम देती है। कभी कभी इंसान ये समझता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि उसके बदले में कितनी बड़ी मुसीबत उसके सर से टल गई है। और कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ मांगी जाती है वो इसलिए नहीं दी जाती कि वो चीज़ उसकी आकबत के लिए नुकसानदेह हो सकती है। वो अहदो मनसब मांगता है या दौलत के लिए दुआएं करता है। अल्लाह ताला खूब जानता है कि उसका ज़रफ़ इन चीज़ों का मतहमल नहीं हो सकता। दुआ कहते हैं अल्लाह ताला के सामने अपनी आजिज़ी ज़ाहिर करने को और अल्लाह से अपनी हाजात करने को, अल्लाह से मांगने को। और दस्तूर ये है कि मांगता वही है जो महताज होता है, न्याज़मंद होता है, बेबस होता है और ज़रूरतमंद होता है। और ये बात ज़ाहिर है कि जिससे मांगा जाता है वो बादशाह होता है, दाता भी होता है, बेनियाज होता है, अता करने वाला होता है, आका होता है, मालिक होता है। इसीलिए तो उससे मांगा जाता है। अब मांगने के लिए कुछ भी होता है, अब मांगने के लिए भी कुछ असूल होते हैं, सलीका होता है, कुछ गुर होते हैं। अगर तो आपको वो सलीका और वो तरीका आता है जिससे आप बादशाह के सामने सवाल रखेंगे तो आपकी इल्तिजा कबूल की जाएगी और आपको जो आप मांगे ये अता किया जाएगा। लेकिन अगर आप लापरवाही के साथ और बेनियाजी के साथ सवाल करेंगे तो आपकी इल्तिजा, आपकी दुआ कैसे मकबूल हो सकती है। अक्सर लोग दुआ में अल्लाह की तारीफ़ नहीं करते। दुआ की कबूलियत के लिए ये शर्त है कि अल्लाह की हम्दो सना की जाए और फिर इसके बाद जो दुआ मांगनी है वो मांगे, उसको उसके प्यारे नामों से पुकारा जाए, फिर उसके सामने अपनी हाजत रखी जाए। अहादीस में आता है कि अस्माउल हुस्ना के वसीले से मांगी हुई दुआएं कबूल होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हर दुआ से पहले अल्लाह की हम्दो सना की जाए, फिर दुआ मांगी जाए। दूसरी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वो है दुआ में दुरूद पाक का ना पढ़ना। रवायात में आता है कि जिस दुआ में दुरूद पाक नहीं पढ़ा जाता वो दुआ ऊपर आसमान की तरफ जाती ही नहीं, और जिस दुआ के साथ दरूद पढ़ा जाता है उसके लिए आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। क्योंकि दरूद को ये फजीलत हासिल है कि ये सीधा अल्लाह के पास से ले जाया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हर दुआ के अव्वल व आखिर दरूद पाक लाजमी पढ़ा जाए ताकि उससे शरफ कबूलियत हासिल हो। तीसरी गलती ये है कि हम जो दुआ भी करते हैं गफलत के साथ करते हैं। अक्सर औकात हमें पता ही नहीं होता कि हमने दुआ क्या की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जान लें कि अल्लाह ताला गाफल और लापरवाह दिलों की दुआ कबूल नहीं फरमाता। हमें चाहिए कि दुआ को खुश ख़ज़ाओ के साथ किया जाए। दुआ मांगते वक्त हमें चाहिए कि दुआ को खुश ख़ज़ू के साथ किया जाए। दुआ मांगते वक्त हमारी पूरी तवज्जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। और चौथी गलती जो दुआ मांगने में की जाती है वो ये है कि दुआ मुनासिब वक्त पर नहीं की जाती। वैसे तो अल्लाह से मांगने का कोई वक्त नहीं, लेकिन अहादीस में ऐसे औकात के बारे में रवायात मिलती हैं कि जिनसे दुआ के कबूल होने के इम्कानात ज़्यादा हैं। और इस तरह से कुछ मकामात भी ऐसे बताए गए हैं जिनकी दुआ का कबूल होना बतलाया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि इन औकात और मकामात के बारे में जाना जाए और इन औकात के दौरान दुआ ज़्यादा कसरत से की जाए। इन बड़ी गलतियों के अलावा दुआ के कुछ दीगर ममानत भी हैं, अगर वो भी पाई जाएं तो कबूल नहीं होती। मसलन हराम खोर, जिस शख्स का खाना पीना और लिबास हराम कमाई से हो उस शख्स की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते।
शेख ताजर दीन इब्न अताउल्लाह सिकंदरी की किताब में एक हदीस मौजूद है जिसका मफहूम कुछ इस तरह है कि एक शख्स दुआ के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि इसका काम फ़ौरन कर दो क्योंकि उसका हाथ फैलाना मुझे पसंद नहीं। और एक शख्स दुआ करता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाते हैं कि इसका काम करने में तौक़ुफ़ करो क्योंकि इसका हाथ फैलाना और मेरे सामने इसका गड़गड़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये कि किसी शख्स को दुआ की तौफीक हो जाना बहुत बड़ी नेमत है। जो शख्स अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए उसको ये बदगुमानी हरगज़ नहीं होनी चाहिए कि उसकी दुआ कबूल होगी या नहीं, बल्कि यकीन रखना चाहिए कि हक़ ताला अपनी रहमत से दुआ ज़रूर कबूल फरमाएंगे। अबू दाऊद की हदीस है कि हक़ ताला बहुत ही करीम और साहिब हया है। जब बंदे उसकी पाक बारगाह में हाथ फैलाते हैं तो उसको शर्म आती है कि वो उनको खाली हाथ वापस करे। ये हमारी कोताही नज़री और गलत फहमी है कि हम जो चीज़ अल्लाह ताला से मांगते हैं अगर वही चीज़ मिल जाए तो हम समझते हैं दुआ कबूल हो गई है, और अगर वही मांगी हुई चीज़ ना मिले तो समझते हैं दुआ कबूल नहीं हुई। हालांकि कबूलियत में दुआ की यही एक शक्ल नहीं है। एक हदीस में है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी बंदा मुस्लिम दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको उस दुआ की बरकत से 3 चीज़ों में से एक चीज़ ज़रूर अता फरमाते हैं। जा तो जो कुछ उसने मांगा है वही अता फरमा देते हैं, जा उसकी दुआ को ज़ख़ीरा आखरत बना देते हैं, जा उसकी दुआ की बरकत से उस शख्स से किसी आफत को टाल देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।